ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور تفصیلی خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے شہر کراچی کے علاقے ناظم آباد مجاہد کالونی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ مجاہد کالونی کے مکینوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ کئی دہائیوں سے آباد رہائشی بستی مجاہد کالونی میں تجاوزات کے نام پر آپریشن۔ مجاہد کالونی میں سالوں سے قائم سینکڑوں آشیانے اور کاروباری مراکز مسمار کر دیے گئے ہیں، جبکہ مجاہد کالونی کے متاثرین بے بسی کی تصویر بنے اپنے مکانات کو ملبے کا ڈھیر بنتا دیکھتے رہے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن نے مجاہد کالونی کے مکینوں پر قیامت ڈھا دی۔ آشیانے تباہ ہونے سے مکینوں کی ہزاروں یادیں بھی ملیہ میٹ ہو گئیں۔ زندگی بھر کا سرمایہ چھن جانے کے بعد یہاں کے مکین کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ بچوں کے سروں پر چھت رہی ہے، نہ خواتین کے لیے چار دیواری کا تحفظ۔ آپریشن کے دوران گنجان آباد بستی مجاہد کالونی کی 70 سالہ تاریخ ملبے تلے دفن ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مجاہد کالونی کے مکین سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کئی دہائیوں سے آباد رہائشی بستی مجاہد کالونی میں تجاوزات کے نام پر آپریشن کیا گیا۔ مجاہد کالونی میں سالوں سے قائم سینکڑوں آشیانے اور کاروباری مراکز مسمار کر دیے گئے ہیں، جبکہ مجاہد کالونی کے متاثرین بے بسی کی تصویر بنے اپنے مکانات کو ملبے کا ڈھیر بنتا دیکھتے رہے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن نے مجاہد کالونی کے مکینوں پر قیامت ڈھا دی۔ آشیانے تباہ ہونے سے مکینوں کی ہزاروں یادیں ملیہ میٹ ہو گئیں۔ زندگی بھر کا سرمایہ چھن جانے کے بعد یہاں کے مکین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ نہ بچوں کے سروں پر چھت رہی ہے، نہ ہی خواتین کے لیے چار دیواری کا تحفظ رہا ہے، جبکہ اس آپریشن کے دوران گنجان آباد بستی مجاہد کالونی کی 70 سالہ تاریخ بھی ملبے تلے دفن ہو گئی ہے۔ کئی دہائیوں سے آباد رہائشی بستی مجاہد کالونی میں تجاوزات کے نام پر آپریشن۔ مجاہد کالونی کے مکین سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ کراچی کے علاقے مجاہد کالونی کے مکینوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ مجاہد کالونی کے مکین بے بسی کی تصویر بنے اپنے مکانات کو ملبے کا ڈھیر بنتا دیکھتے رہے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن نے مجاہد کالونی کے مکینوں پر قیامت ڈھا دی ہے۔ آشیانے تباہ ہونے سے مکینوں کی ہزاروں یادیں ملیہ میٹ ہو گئی۔ زندگی بھر کا سرمایہ چھن جانے کے بعد یہاں کے مکین کھلے آسمان تلے آ گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ نہ بچوں کے سروں پر چھت رہی ہے، نہ خواتین کے لیے چار دیواری کا کوئی تحفظ رہا ہے۔ ایسے میں کوئی متبادل بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر سے کراچی کی عوام کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس سے قبل نسلہ ٹاور کو منہدم کیا گیا تھا، جس کے مکین بھی سڑک پر زندگی گزارنے پر مجبور تھے، جبکہ اس کے بعد یہ مجاہد کالونی کا علاقہ ہے جہاں کے مکین سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ نہ بچوں کے سروں پر چھت رہی ہے، نہ ہی خواتین کے لیے چار دیواری کا تحفظ رہا ہے، جبکہ آپریشن کے دوران گنجان آباد بستی مجاہد کالونی کی 70 سالہ تاریخ بھی ملبے تلے دفن ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مجاہد کالونی کے مکین سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ رہائشی بستی مجاہد کالونی میں تجاوزات کے نام پر آپریشن کیا گیا، جبکہ مجاہد کالونی میں سالوں سے قائم سینکڑوں آشیانے اور کاروباری مراکز کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ مجاہد کالونی کے متاثرین بے بسی کی تصویر بنے اپنے مکانات کو ملبے کا ڈھیر بنتے دیکھتے رہے۔ آپ کو بتائیں کہ آپریشن بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ادارہ ترقیات کراچی کے مشترکہ طور پر کیا جا رہا ہے، جبکہ تجاوزات کے خلاف آپریشن نے مجاہد کالونی کے مکینوں پر قیامت ڈھا دی ہے۔ آشیانے تباہ ہونے سے مکینوں کی ہزاروں یادیں ملیہ میٹ ہو کر رہ گئی ہیں۔ زندگی بھر کا سرمایہ چھن جانے کے بعد یہاں کے مکین کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ مکین کھلے آسمان تلے آ گئے ہیں۔ نہ بچوں کے سروں پر چھت رہی ہے، نہ ہی خواتین کے لیے چار دیواری کا تحفظ رہا ہے، جبکہ اس آپریشن کے دوران گنجان آباد بستی مجاہد کالونی کی 70 سالہ تاریخ ملبے تلے دفن ہو گئی ہے۔ ناظم آباد مجاہد کالونی کے مکینوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ مکانات مسمار کرنے کا سلسلہ چھٹی کے روز بھی جاری رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مجاہد کالونی میں تجاوزات کے نام پر آپریشن چل رہا ہے۔ یہ آپریشن کے لیے اور محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز احمد اسحاق سے۔ احمد اسحاق، بتائیے گا کن بنیادوں پر 70 سال سے قائم بستی کو اچانک سے منہدم کیا جا رہا ہے؟
जी उसामा, बिल्कुल कराची का ये इलाका है मुजाहिद कॉलोनी, जहाँ पर हमने देखा आज यकीनी तौर पर छुट्टी का रोज़ रहा 9 नवंबर। शायद मशरिक़ के हवाले से छुट्टी रही, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा मुजाहिद कॉलोनी पर तजावुज़ात गिराव ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। हमने देखा कि वहाँ पर जो कि मुतासरीन थे, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो है मलबे के ढेर में तब्दील होती देखी। यकीनी तौर पर जो कि वहाँ के रिहायशी थे, उनके जो कि सर थे उसके ऊपर से छत अब नहीं रही है, और उनका वाज़ेह तौर पर ये मुतालबा अब सामने आ रहा है कि हुकूमत वक्त अगर उनके मकानात को, उनके घरों को, उनकी जगह को गैर कानूनी करार देकर मेस्मार मुनज़्ज़म कर रही है, तो उनको उसकी जगह मुतबादिल दिया जाए, या उसके बदले जो है उनको उस नौयत की रकूम अदा की जाए, ताकि उनके दूसरी जगह पे जो है वो घर ले सके। आज भी हमने देखा कि मुजाहिद कॉलोनी पर तजावुज़ात गिराव ऑपरेशन जारी रहा। लोगों के मकानात जो कि ग्राउंड से फ्लोर से हमने देखा ग्राउंड +1 ग्राउंड +2 तक बने हुए थे, उनको हेवी मशीनरी की मदद से जो है मेस्मार किया गया। यकीनी तौर पर हम देखते हैं कि मुजाहिद कॉलोनी के जो कि मकीन है उनके ऊपर क़यामत ढाई जा रही है। मैं यहाँ पर ये वाज़ेह करता चलूँ कि आला अदलिया के ये वाज़ेह तौर पर अहकामात हैं कि जो कि सरकारी अराजी हो या फिर नाले की जगह हो या फिर दीगर, वहाँ पर अगर तजावुज़ात कायम होंगी तो उनको जो है जो कि मुतालिका महकमे हैं, ख्वाह वो SBC हो, KDA हो या फिर KMC या ज़िले इंतज़ामिया, तो फौरी तौर पर मुनज़्ज़म करे। लेकिन वाज़ेह तौर पर आला अदलिया के ये भी अहकामात हैं कि उनके घरों को मुनज़्ज़म करने से कबल जो कि हुकूमत वक्त है वो उनको मुतबादिल जगह फराहम करे। लेकिन हम यहाँ पर ये अलमिया देखते हैं कि उनके घरों को तो आला अदलिया के अहकामात पर मिसमार किया जा रहा है, लेकिन उनको उसका मुतबादिल नहीं दिया जा रहा। यकीनी तौर पर ये सूबाई हुकूमत हो या फिर शहरी हुकूमत, उनकी कारकर्दगी पर बड़ा सवाल ये निशान है। मुजाहिद कॉलोनी के मकीन है जिनके ऊपर क़यामत टूट पड़ी है, उनके मकानात को जिंदगी भर की जो जमा पूंजी थी मलबे के ढेर में तब्दील किया जा रहा है, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि वो बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। जी अच्छा अमर इसाक, इससे पहले देखा गया कि नस्ला टावर के मकीन, फिर गुजरनाला के मुतासरीन और अब ये मुजाहिद कॉलोनी के मुतासरीन, ये आखिर हो क्या रहा है इस शहर में? क्या इदारे 70 साल के बाद जाग रहे हैं? जी उसामा, बिल्कुल यही समझ से बालातर है, और अलमियत से किसी कम नहीं है कि पहले हमने देखा नस्ला टावर, जिसको हमने देखा कि 17 से 18 इदारों की NOC मिली हुई थी, ख्वाह वो KDA हो, SBC हो या दीगर हो, उसकी परमिशन के बाद वो नस्ला टावर कायम रहा था। उसके बाद हमने देखा कि आला अदलिया के अहकामात आते हैं, फिर उसको गैर कानूनी करार दिया जाता है और जो है सफाई हस्ती से जो है उसको मिटा दिया जाता है। अब इसी तरीके से मुजाहिद कॉलोनी की सूरत हाल हम देखते हैं कि 70 साल तारीख से जो है हम देखते हैं कि वहाँ पर मकीन आबाद थे, एक लाखों की तादाद में हमने देखा बड़ी आबादी वहाँ पर रही है। अब जो है गैर कानूनी जवाज बनाकर उनके घरों को जो है तोड़ा जा रहा है। यकीनी तौर पर अगर वो तजावुज़ात के ज़मरे में आते हैं तो फौरी तौर पर यकीनी तौर पर आला अदलिया के अहकामात उसको तोड़ा जाए। लेकिन आला अदलिया की ये भी अहकामात हम दूसरी जगह देखते हैं कि उनको मुतबादिल दिया जाए, लेकिन इस जानिब हम देखते हैं ना तो सूबाई हुकूमत की कोई तवज्जो है, ना ही शहरी इंतजामिया की। यकीनी तौर पर हम देखते हैं मकीन बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं, अपने जिंदगी भर की जमा पूंजी अपनी आंखों के सामने मलियामेट होते देख रहे हैं। हेवी मशीनरी से उनके घरों को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। जिन लोगों ने अपने घरों का सामान नहीं निकाला था, उनके घरों को सामान के साथ ही जो है मिसमार किया जा रहा है। तो यकीनी तौर पर किसी अहमियत से कम नहीं है। आला अदलिया को इस हवाले से भी नोटिस लेने की जरूरत है और मुतबादिल जगह फराहम करनी चाहिए, जो कि उनका हक है। जी अच्छा अमर इसाक, अगर देखा जाए तो गुजर नाले के मुतासरीन जो है वो अब तक दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। 1-1 करोड़ रुपए के घर के बदले उनको 90-90 हज़ार के चेक्स जो दिए जाने थे अब तक वो भी नहीं दिए गए। डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगा रहे हैं। अब मुजाहिद कॉलोनी के अगर मकीनों की बात की जाए, जैसे गुजर नाले पे देखा गया कि लीज मौजूद थी, क्या मुजाहिद कॉलोनी के मकीनों के पास लीज मौजूद है? जी उसामा, बिल्कुल जिस तरीके से गुजर नाले के मकीन थे वो भी हमने देखा कि एक कदीमी आबादी वहाँ पर रही थी, और जब उनके घरों को तजावुज़ात का जवाब बनाकर जो है मुनज़्ज़म किया गया तो
ان کو 90,000 کے, کسی کو لاکھ کے چیک دیے گئے, بلکہ ایک تعداد تو ہم ایسی ہے جن کو اب تک کے وہ چیک پہنچ بھی نہیں سکے ہیں. وہاں کے جو کہ متاثرین تھے وہ اداروں کے چکر لگا کر. اچھا عمر کہیے گا کہ یہ جو نظام انصاف ہے کہ کروڑوں کے گھر توڑ کے 90,000 کے چیک تھما دیے جائیں, یہ کیا متبادل سمجھا جائے اسے؟ جی اسامہ, بالکل یقینی طور پر سوالیہ نشان ہے متعلقہ محکموں کی کارکردگی پر, سندھ حکومت کی کارکردگی پر, کہ ان کے کروڑوں کے مکانات ہیں, زندگی بھر کی جمع پونجی ہے, ان کے جینے کا سہارا ہے, اس کے برعکس ان کے گھروں کو پورا سطح ہستی سے مٹا کر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر کے 90,000 کا چیک دے دینا, تو یقینی طور پر یہ کہیں کہ انصاف ہمیں معلوم. لیکن احمد, وہ تمام تر متاثرین کو اب تک 90,000 والا چیک بھی موصول نہیں ہوا. جی بالکل اسامہ, اس کے اوپر جو کہ اعلیٰ عدلیہ ہے, ہمارے ادارے ہیں, ان کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جو متاثرین تھے ان کی جانب سے جب علاقائی پولیس کے دفاتر کے چکر لگائے گئے تو وہاں پر پولیس نے بھی ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا, کوئی سہارا نہیں بنا. تو اس وقت یقینی طور پر تمام متاثرین, خواہ وہ گجر نالے کے ہوں یا نسلہ تاور کی یا مجاہد کالونی کے, تمام بے سر و سما جو ہے بیار و مددگار ہیں, مسیح کے منتظر ہیں. مطالبات ان کی جانب سے یہی سامنے آ رہے ہیں کہ ان کو یا تو ان کے گھر کے رقوم کے متبادل رقم دی جائے یا پھر ان کو اس کا متبادل کسی اور مقام پر دیا جائے تاکہ ان کے گھر سے جو کہ چھت چھینی ہے وہ جو ہے کسی چھت کے نیچے آ جائے. جی احمد اسحاق, مکین سڑک پر زندگی گزار رہے ہیں, نہ خواتین کو چار دیواری کا تحفظ ہے, نہ بچوں کے سروں پر چھت ہے. کیا سمجھتے ہیں, کیا انہیں بھی چیک تھما دیے جائیں گے یا متبادل زمین دی جائے گی؟ جی اسامہ, بالکل ابھی تو ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے اور مجاہد کالونی کی متاثر ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے بے سر و سامان جو ہے کھلے آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. تو جب کوئی بھی متاثرین 10 ٹکر ایک محکمے کا لگاتا ہے تب اس کو جو ہے 1 سے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کا چیک تھما دیا جاتا ہے, تو یقینی طور پر یہ کہیں کا انصاف ہمیں معلوم نہیں دکھائی دیتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے جس طریقے سے اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے احکامات صادر کر دیے جاتے ہیں کہ تجاوزات کے زمرے میں جو بھی مکانات آئیں, پارک آئیں یا کوئی بھی ہو اس کو فوری طور پر منہدم کیا جائے. تو اسی طریقے سے اعلیٰ عدلیہ کو اس حوالے سے بھی کوئی کمیٹی تشکیل دینے کی اب ضرورت ہے جو جن متاثرین کے مکانات گرائے جائیں ان کو متبادل مل رہا ہے یا نہیں, اس کے بعد ہی انصاف ہو سکے گا ان متاثرین کے ساتھ, کراچی کے شہریوں کے ساتھ, جو کہ یقینی طور پر نہ صرف پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کی یقینی طور پر جب پاکستان قائم ہوا اس میں اہم کردار رہا ان کے آباء و اجداد کا, اس کے بعد ہی ان کو انصاف مل سکے گا. اس وقت کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ تمام مکین بیار و مددگار ہے, زندگی بھر کی جمع پونجی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہوتی دیکھ کر یقینی طور پر خون کے حاصل ہونے پر مجبور ہے. جی احمد اسحاق ہمیں مجاہد کالونی کے حوالے سے تفصیلی آگاہ کر رہے تھے, آپ کا بے حد شکریہ. ناظم آباد کی مجاہد کالونی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہونے لگی. چھٹی کے دن بھی متاثرین سکون کا سانس نہ لے سکیں. KMC اینٹی انکروچمنٹ نے KDA کے اشتراک سے 4 منزلہ مکانات مسمار کرنے کا سلسلہ جاری رکھا. معصوم بچوں کا اپنے سروں سے گھر کی چھت چھن جانے پر معصومانہ مطالبہ تھا کہ ہمیں گھر دیا جائے, رات کو نیند نہیں آتی. کل یہ ہمارا گھر تھا, 5 فیملیاں رہتی تھی, توڑ دیا. اگر اب عوام روڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, کوئی انصاف بھی نہیں دے رہی گورنمنٹ کسی کا, کوئی حق تو دے دو. میرا ابو آلو پیاز کا کام کرتے ہیں, اب ہم باہر بیٹھ کے کوئی انصاف نہیں کر رہا. یہ پلاٹ دینے کی بات کر رہے تھے, نہیں ہمیں پلاٹ دیا, اب ہم باہر بیٹھے, یہ ہمارا سامان پڑا ہوا ہے. متاثرین کا کہنا تھا کہ ہم اپنی تکلیف الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. خواتین گھر کی 4 دیواری سے سڑکوں پر آ گئی ہیں. وہ بیٹھی ہے میری فیملی بیٹا, ابھی میں ہاسپٹل سے آئی ہوں. انہوں نے آنسو کے چھوڑے تھے نا, جب سے میری بہو کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور میں ہاسپٹل میں پھر رہی ہوں. یہ کم سے کم 15 لاکھ کی آبادی ہے. ابھی اتنی بڑی آبادی کو نہ تو کوئی گھر کرایہ پہ دے رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں عورتیں بچے روڈوں پہ بیٹھے ہیں.
ये हमारे साथ कसम खुदा की जुल्म कर, बहुत खतरनाक जुल्म, हद से ज़्यादा परेशान। इसका आप आया आला हुकाम कोई बोल सकते हैं या अल्लाह को बोल सकते हैं, कौन है जो हमारी भी सुने। जवान बच्चियों को रोड पे लेके खड़े हैं। मुजाहिद कॉलोनी की 70 साला तारीख मलबे तले दफन की जा रही थी। इनके घरों पर चलने वाले हथौड़े दिल पर लग रहे थे। कैमरामैन मंसूर बनारसी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। अवामी नेशनल पार्टी ANP सिंध के सदर शाही सैयद मुजाहिद कॉलोनी के मुतासरीन के हक में बोल पड़े हैं। आपको बताएं कि अवामी नेशनल पार्टी का मुजाहिद कॉलोनी के मुतासरीन को मुतबादिल घर देने का मुतालबा है। ANP सिंध के सदर शाही सैयद कहते हैं कि मुजाहिद कॉलोनी के मुतासरीन के साथ खड़े हैं, जबकि मुजाहिद कॉलोनी के बासियों के साथ सरासर ज्यादती बंद की जाए। मुजाहिद कॉलोनी के मुतासरीन को मुतबादिल दिए बगैर बेघर ना किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सूबे को वसाइल को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ अमल है, जबकि अपने लोगों को अरबों रुपए के फंड्स दे रही है और दूसरी जमातों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। इस मुल्क का कौन सा इदारा है कि इस बंदे ने उस पर इल्जामात नहीं लगाए। आप बरमला कभी भी तारीख में किसी ने इतना इलेक्शन को भी गाली, अदालतों को भी गाली। सबसे पहले आप सब मेरे साथ सीनियर लोग हैं। आया पार्लियामेंट भी तौकीर नहीं हुआ? आया ये पार्लियामेंट सब्जी मंडी की तरफ माल नहीं बेचा? सीनेट में क्या हुआ? 64 बंदे खड़े थे और जब बाद में गिनती कर दी तो 46 हो गए। और खुद एक प्राइम मिनिस्टर जो था वो कह रहे हैं कि 70 करोड़ रुपए लोगों ने दिए। तो इसलिए जो सियासत को शाइस्ते की खत्म हुई, बेतौकीरी हुई। अब जो चीज़ है जो हमें नजर आया, जिसने हमें वो जगाया, तो हमें इस एक चीज ने जगाया कि इस वक्त अनार की बिली हुई है। कल हमारे इलाके में मर्दान में फ्लाइंग कोच के अंदर आपस में इस बात पे तुतू मारी हुई है और लड़ाई भर करके एक बंदा मारा गया। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती तहा सलीम ने तजावुजात के खिलाफ नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से 150 फीट चौड़ी शाहरा की ज़मीन को बागुजार करवाने के लिए जारी ऑपरेशन का जायजा लिया। नॉर्थ आज़ाबाद मुजाहिद कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर व डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती तहा सलीम का कहना था कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने से कबल जिला इंतजामिया और KDA की जानिब से तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की कॉपी और वार्निंग लेटर भी ऑपरेशन से कई रोज कबल जारी कर दिए गए थे, ताकि लोग तजावुजात ऑपरेशन से कबल ही अपने मकानात खाली कर दें, जिसके नतीजे में बहुत से लोगों ने रजाकाराना तौर पर अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया था। उनका मजीद कहना था कि कब्जा माफिया के बहकावे में आए हुए लोग ऐसा हरगिज ना करें। बहरहाल ये जमीन KDA की सरकारी है, जिसे वागुजार कराने के लिए KDA एनफोर्समेंट के अफसरान और अमला ऑपरेशन कर रहा है, जिसकी मुआवनत के लिए जिला इंतजामिया, सिंध पुलिस, KMC और DMC सेंट्रल के अफसरान मैदान अमल में है। मजीद बोलें कि मुजाहिद कॉलोनी में कायम तजावुजात को खत्म करके 150 फीट चौड़ी शाहरा की तामीर की जाएगी, जिसके लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन नागुज़ीर है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज शरपसंद अनासिर की वजह से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावट डालने की कोशिश भी की गई थी। शरपसंद अनासिर और कब्जा माफिया की मज़ाहमत को पुलिस की मदद से रोका गया और ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। जिला वस्ती की इंतजामिया और एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान मामले ने मुसलसल कार्रवाई करके गैर कानूनी तौर पर कायम की जाने वाली तामीरात को मुनहदम किया। जिला इंतजामिया की जानिब से गैर मुतज़लज़ल ऑपरेशन को देखते हुए बहुत से अफराद ने इमारतों को खुद ही खाली करना शुरू कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद मोहतरमा ज़ैनब जहादात, DSP नाज़िमाबाद मोहम्मद सलमान, KDA एनफोर्समेंट, KMC और DMC के अफसरान भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते चलें और यहाँ आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात हुई है, जबकि इस मुलाकात में सूबे में सैलाब मुतासरीन की बहाली के इकदामात पर तफसीली बातचीत हुई।
मुख्तलिफ उमूर पर की जाने वाली कानून साजी, सूबे के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा कि सैलाब मुतासरीन हमारी जानिब देख रहे हैं। मौसर कानून साजी के जरिए अवाम की फलाह बहबूद यकीनी बनाई जा सकती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। इस मुलाकात में सूबे में सैलाब मुतासरीन के बहाली के इकदामात पर तफसीली बातचीत की गई है, जबकि मुख्तलिफ उमूर पर की जाने वाली कानून साजी, सूबे के तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन हमारी जानिब देख रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मौसर कानून साजी के जरिए अवाम की फलाह बहबूद यकीनी बनाई जा सकती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के 31 रुकनी वफ़द की वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की सरबराही में मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि इस मुलाकात में सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मुराद अली शाह ने कहा है कि सर्दियां भी शुरू हो रही हैं, जबकि हमारे लोग इस वक्त बेहद तकलीफ में हैं। घरों की तामीर का काम जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं। सिंध सोलर प्रोजेक्ट सैलाब मुतासर इलाकों में शुरू करना चाहते हैं। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वर्ल्ड बैंक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए फंड जारी करने जा रहा है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के 31 रुकनी वफ़द की कंट्री डायरेक्टर की सरबराही में मुलाकात हुई, जिसमें सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि सर्दियां भी शुरू हो रही हैं, जबकि हमारे लोग इस वक्त बेहद तकलीफ में हैं। घरों की तामीर का काम जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं। सिंध सोलर प्रोजेक्ट सैलाब मुतासर इलाकों में जल्द शुरू करना चाहते हैं। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वर्ल्ड बैंक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए फंड जारी करने जा रहे हैं। खबर देंगे वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले से ही। आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक का प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे का मंसूबा जल्द शुरू करने पर इत्तेफाक हो गया है, जबकि प्रोजेक्ट अब कराची में अगले माह से शुरू कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक का जाम सादिक पुल के मुतबादिल की तामीर को जल्द शुरू करने पर भी इत्तेफाक हो गया है। मुराद अली शाह कहते हैं कि टेक्निकल माहिरीन हायर किए जा रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट फाइनल किया जाए। सूबे में सैलाब से 500 सड़कें बुरी तरह से मुतासिर हुई। 500 सड़कों में से 268 सड़कें वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुरम्मत की जाएंगी। वर्ल्ड बैंक इन सड़कों के लिए $80 मिलियन दे रही है। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक का प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे का मंसूबा जल्द शुरू करने पर इत्तेफाक हो गया। ये प्रोजेक्ट अब कराची में अगले माह से शुरू किया जाएगा। आपको बताएं कि मुराद अली शाह ने कहा कि टेक्निकल माहिरीन हायर किए जा रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट से फाइनल किए जाएं। सूबे में सैलाब से 500 सड़कें बुरी तरह से मुतासिर हुई। 500 सड़कों में से 268 सड़कें वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुरम्मत की जाएंगी, जबकि वर्ल्ड बैंक इन सड़कों के लिए $80 मिलियन दे रहा है। तो दूसरी जानिब सिंध के वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी से न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी के वफ़द ने मुलाकात की। आपको बताएं कि वफ़द का सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली में किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार। सईद गनी की मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी को हुकूमत सिंध की जानिब से मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी। सईद गनी ने कहा कि हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरीन की बहाली के अमल में दिन रात मसरूफ़ अमल है। हमारी अव्वलीन तरजीह अपने लोगों की ज़िंदगियों को दोबारा मामूल पर लाना है। ये बहुत खुशाइन बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में सैलाब मुतासरीन की बहाली में भरपूर किरदार अदा करने का अज़म रखते हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान व एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि दूसरे शहरों की निस्बत कराची एक अलग शहर है, जहाँ के मसाइल भी अलग नौयत के हैं। कराची की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स की ज़रूरत है। म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स बिजली के बिल में शामिल करने का मकसद KMC को अपने पाँव पर खड़ा करना था। कराची के सातों अजला में तरक्याती काम जारी हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है।
ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ دوسرے شہروں کی نسبت شہر کراچی ایک الگ شہر ہے جہاں کے مسائل بھی الگ نوعیت کے ہیں۔ کراچی کی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر فنڈز کی ضرورت ہے۔ میونسپل یوٹیلیٹی ٹیکس بجلی کے بل میں شامل کرنے کا مقصد KMC کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا تھا۔ کراچی کے 7 اضلاع میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی تیار ہے۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو نیٹ اینڈ کلین اور اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن جاری ہے۔ ایسے میں KMC اینٹی انکروچمنٹ نے کراچی کے 2 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ صدر میر کرم علی تالپور پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کی گئیں، جبکہ لیاقت آباد میں مرکزی شہروں پر قائم خستہ حال عمارتوں کے مالکان کو تزئین و آرائش کے لیے بھی نوٹسز ارسال کر دیے گئے۔ عمارتوں، دکانوں اور دفاتر کے بیرونی حصوں پر رنگ و روغن اور خوشنما بنانے کی بھی ہدایت کر دی۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ کا شہر کے 2 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ صدر میر کرم علی تالپور روڈ پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کی گئیں، تو دوسری جانب لیاقت آباد میں مرکزی شاہراہوں پر خستہ حال عمارتوں کے مالکان کو تزئین و آرائش کے لیے نوٹسز بھی ارسال کر دیے۔ عمارتوں، دکانوں اور دفاتر کے بیرونی حصوں پر رنگ و روغن اور خوشنما بنانے کی ہدایت کر دی۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ نے KDA کے محکمہ انسداد تجاوزات کے اشتراک سے مجاہد کالونی میں دوسرے روز چھٹی کے باوجود تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ مذکورہ کارروائی میں بڑے پیمانے پر مکانات، دکانیں اور دیگر تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ کارروائی میں بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ مذکورہ کارروائی ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ڈیپٹی ڈائریکٹرز نے کی۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ صدر ڈویژن میں میر کرم علی تالپور روڈ کے اطراف روڈ اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جن میں ٹھیلے پتھارے اور لوہے کے شیڈز کا صفایا کر دیا گیا۔ کارروائی ڈائریکٹر ساؤتھ زین ملک نے عملے کے ہمراہ کی۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل لیاقت آباد ڈویژن کی مرکزی سڑکوں اور شاہراہوں پر واقع مکانات، دفاتر، اپارٹمنٹس اور کاروباری مراکز کو اپنی عمارتوں کے بیرونی حصے کی تزئین و آرائش اور رنگ و روغن اور مرمت کو جلد از جلد عمل درآمد کرانے کے لیے بلدیہ عظمی کراچی سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے باب 15 سیکشن 132 اور جدول چشم کے تحت نوٹسز جاری کیے گئے، جبکہ بلڈنگ اور تجارتی مراکز کے یونین سے باقاعدہ ملاقاتیں کی گئیں۔ تمام کارروائیوں میں اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ KMC اور متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز اور علاقہ پولیس بھی موجود تھی۔ شہر کراچی کا مشہور و معروف جہانگیر روڈ ایک مرتبہ پھر سے تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ جہانگیر روڈ کی بار بار تعمیرات کے باوجود بھی قسمت نہ بدل سکی۔ جہانگیر روڈ کا ایک ٹریک ٹوٹ پھوٹ کے باعث تباہ ہو گیا ہے، جبکہ جہانگیر روڈ سے متصل نالہ بھی کچرے سے بھر گیا۔ اسٹریٹ لائٹس کی بندش نے خستہ حال سڑک سے گزرنا محال کر دیا۔ کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود بھی مکین سہولیات کو ترسنے لگے ہیں۔ اسی پر براہ راست تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے حفیظ انصاری سے۔ حفیظ انصاری، کہیے گا جہانگیر روڈ ایک بار پھر سے تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا؟ جی ہاں، بالکل شہر کراچی کی جو صورت حال ہے وہ تو سفر کرنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ شہر کراچی کی سڑکوں کا کیا حال ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں جہانگیر روڈ کا، یہ وہ روڈ ہے جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس روڈ کو بنایا بھی گیا ہے۔ کچھ حصہ ضرور بنایا گیا تھا جو کہ پھر جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا، لیکن یہ گرومندہ سے 3 اٹی جانے والی یہ روڈ ہے، شاہراہ پر کس قسم کی صورت حال ہے میرا کیمرہ مین طارق اگر دکھائے تو یہ کس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے یہاں سفر کرنے والے گاڑیوں کو، موٹر سائیکل سواروں کو کس قسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ موٹر سائیکل سوار ہوں یا گاڑیوں میں آنے والے لوگ ہوں یا رکشے میں جانے والے لوگ ہوں، کس طرح گڑھوں سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور بامشکل یہاں سے نکلتے ہیں، حادثات سے بھی بچتے ہیں۔ اور ایک طرف یہ رخ ہے اس سڑک کا، جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کس مشکل سے جو ہے اور رکشے والا رکشہ نکال کر جو ہے اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ اندھیرے کے اندر ظاہر ہے یہ گڑھے نظر نہیں آتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر جو ہے گاڑیاں آپس میں ٹکرا بھی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندھیرا ہونے کی کہ اسٹریٹ لائٹس جو ہیں، اسٹریٹ لائٹس کام نہیں کر رہی ہیں، اسٹریٹ لائٹس جو ہے بند پڑی ہوئی ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ
कई महीनों से बंद है, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। रोशनियों का शहर कराची के अंदर, स्ट्रीट लाइट्स एक तरफ बंद, दूसरी तरफ ये सड़कें टूट फूट का शिकार, तो तीसरी तरफ ये मेरे बाएं जानिब देखें कि ये नाला है। इस नाले की वजह से ही जो है स्लैब हटाए गए थे कि इसको साफ किया जाएगा ताकि जो पानी की निकासी हो सके। सफाई होने के बाद दोबारा यहाँ स्लैब नहीं रखेगा, जिसके बाद फिर जो है ये कचरा और गंदगी का ढेर बना हुआ है ये नाला। यकीनन जो है फिर वही सूरत हाल होगी कि ये नाले भर जाएंगे, फिर बारिश होंगी, फिर बारिश का पानी बाहर आ जाएगा। तो जो असल सूरत हाल यानी कि शहर कराची की वजह यही बनती है कि इसको जो मुस्तकिल बुनियादों पर जो है चेक एंड बैलेंस नहीं देखा जाता है कि काम होने के बाद जो है उस जगह को, उस नाले को जो है फिर दोबारा ढाँप दिया जाए ताकि फिर वहाँ कचरा ना जाए। यही वजह है कि ये जहांगीर रोड जाने वाले जो अतराफ के दोनों नाले हैं फिर भरना शुरू हो रहे हैं और फिर सीवरेज का पानी अगर बारिश हो तो फिर बाहर आ जाएगा। तो शहर कराची का ये जहांगीर रोड तो यकीनन जो है जहांगीर बादशाह के हवाले से कई कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन ये कहानी जहांगीर रोड के हवाले से भी मशहूर है कि यहाँ का रोड जो है टूट फूट का शिकार है और यहाँ से गुजरने वाला अब तो इस रोड का जो है बिल्कुल मुतबादिल कोई रोड इख्तियार करता है। इस रोड से गुजरना जो है वो मुमकिन समझते ही नहीं है कि यहाँ इस रोड से वो गुजर पाएगा। तो अब गुरुमंदिर से तीनट्टी की तरफ जो जाने वाले लोग हैं वो अक्सर जो है गोली मार का रास्ता इख्तियार करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि ये रोड टूट फूट का शिकार है। सिर्फ जो थोड़ा सा टुकड़ा बनाया गया था जहांगीर रोड का यकीनन जो है उसके बाद जो है हमने देखा वो भी फिर जो है बुरी तरह जो है उसके जो काम का मेयार था उसकी कलाई खुल गई थी। लेकिन ये जो पट्टी है पूरी गुरुमंदिर से तीनट्टी जाने वाली, ये बिल्कुल इसको अब तक बनाया नहीं गया है, जिसके लिए इलाका मकीनों का कहना है कि इसको बनाने की अशद ज़रूरत है। कई बरसों से वो ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज अंसारी। और यहाँ आपको बताते चले कि कराची का जिला वस्ती कचरे का अंबार बन गया है। जिला वस्ती में कचरे के अंबार भयानक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पुरानी सब्जी मंडी से लियाकताबाद जाने वाली मरकजी सड़क पर जा बजा कचरे के अंबार हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और जिला इंतजामिया इलाके को गंदगी से पाक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है, जबकि शहरी कहते हैं कि बर वक्त कचरे को ठिकाने ना लगाना किसी अलमिये से कम नहीं। गंदगी के बायस यहाँ हर फर्द किसी न किसी मर्ज में मुब्तला हो चुका है। शहरियों को वबाई अमराज से बचाना तो होगा कचरे को बर वक्त ठिकाने लगाना। कराची के दीगर अजला की तरह जिला वस्ती में भी कचरे के अंबार भयानक शक्ल इख्तियार कर गए हैं। लियाकताबाद को पुरानी सब्जी मंडी से मिलाने वाली मरकजी सड़क न सिर्फ कचरे की लपेट में है, वहीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और इलाके के वाहिद पार्क में आने वाले शहरी भी सख्त अजियत से दो चार हैं। शहरी कहते हैं बर वक्त कचरे को ठिकाने न लगाना किसी अलमिये से कम नहीं। यहाँ हर फर्द किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है। देखिए, आपने सवाल में एक जुमला इस्तेमाल किया कि स्कूल और कॉलेज हैं। मैं खुद एक उस्ताद हूँ, टीचर हूँ और तंजीम साथ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। ये कचरा जो है ना, तलबा की तालीमी जो कैफियत है उसमें बहुत बुरे असरात मरतब करा। अब आप पूछेंगे कैसे, कि देखिए इस कचरे की वजह से बच्चे मुस्तकिल बीमार हैं, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू तमाम उसमें। तो क्या सूरत हाल क्या है, तालीम पे वो फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। निस से जायद शाहराह पर फैला ये कचरा मच्छरों की अफजाइश के साथ साथ तरह तरह के वबाई अमराज के फैलाव का बाइस बन रहा है, जिस पर हुक्काम बाला समेत जिला वस्ती इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ भी जारी हैं। सैलाब के बाद उबाड़ों की नहरें खस्ता हाल हो गई हैं, जबकि नहरों में शगाफ पड़ना रोज का मामूल बन गया है। गांव बहराम शहर के करीब 15 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जबकि नहर में शगाफ पड़ने के बायस गांव के मकीनों का भारी नुकसान भी हुआ। सैकड़ों एकड़ गंदम की फसल और पूरा गांव पानी की लपेट में आने से गांव के बासी सख्त परेशान हो गए। सैलाब के बाद उबाड़ों की नहरें खस्ता हाल हो गई। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, जबकि नहरों में शगाफ पड़ना भी रोज का मामूल बन गया। गांव बहराम शहर के करीब 15 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जबकि नहर में शगाफ पड़ने के बायस गांव के मकीनों का भारी नुकसान हुआ। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल और पूरा गांव पानी की लपेट में आने से गांव के बासी परेशान हो गए। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी अब कचरा ना उठाए जाने का मसला हल हो गया है।
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से हैदराबाद में कचरा उठाने का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि पहले मरहले में हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद के इलाकों में काम शुरू किया गया है। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहजेब शेख। मसला अब हल हो गया, क्योंकि अब हैदराबाद में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने तुर्किश कंपनी के इश्तिराक से गार्बेज लिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा हो रहा है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह पाक इनको मजीद तौफीक दे कि आगे भी इसी तरीके से इस काम को लेके चले। कचरे की वजह से लोग इतने परेशान थे, जगह जगह कचरों के ढेर पड़े हुए हैं, स्कूलों के पास, रोडों पे बेइंतहा कचरा था। लेकिन अब ये जो इन्होंने मुहिम शुरू की है और ये जो एक डिपार्टमेंट बना के इन्होंने एक मखसूस काम शुरू किया है, तो मैं समझता हूँ ये हैदराबाद के अवाम के लिए एक अच्छा इकदाम है। पहले मरहले में लतीफ़ाबाद के इलाकों से कचरा उठाए जाने का काम शुरू किया गया है, जिसके बाद सिटी और कासमाबाद में भी गार्बेज लिफ्टिंग का आगाज होगा और शहर से योमिया 1100 से 1200 टन कचरा उठाया जाएगा। अभी तक हमारा तकरीबन 1000 टन वेस्ट उठाया जा चुका हुआ है। लतीफाबाद से स्टार्ट कर दिया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता हम चलते चलते सिटी पे की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद कासमाबाद एंड पे कोटरी का है। अभी स्टार्टिंग में हम बल्क वेस्ट उठा रहे हैं और जो मेन रोड्स हैं हमारी उसको क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम बैकलॉग क्लियर करेंगे और उसके बाद हम अंदर नैरो स्ट्रीट्स और अंदर मोहल्लों में जाएंगे, डोर टू डोर भी होगी। हैदराबाद में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत 200 से 250 टन योमिया कचरा उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। कचरा उठाए जाने पर हैदराबाद के अवाम बेहद खुश हैं, मगर ये तशवीश भी जाहिर की जा रही है कि ये काम देर पा चलना भी चाहिए। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसीज रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि आइडियाज़ 2022 दिफाई नुमाइश के इंतजामात के हवाले से बल्दिया शर्की अपना हर मुमकिन किरदार अदा कर रहा है। एक्सपो सेंटर के गिरदो नवा पौधों और खूबसूरत फूलों को लगाने के साथ साथ पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगहों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सलमान मेमन, डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज तौकीर अब्बास और दीगर के हमरा आइडियाज़ 2022 के हवाले से किए जाने वाले कामों के मुआयने के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसीज रहमतुल्लाह शेख ने अफसरान से कहा कि वो जल्द अज जल्द इंतजामात को हतमी शक्ल दें। बल्दिया शर्की में हर सतह पर शफाफियत को तरजीह दी जा रही है, जिसकी बदौलत तरक्याती काम भी सरअंजाम दिए जा रहे हैं और मुलाजमीन के मसाइल भी हल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इदारे का माली नज़्म नस्क दुरुस्त हो तो वो इस बात की अक्कासी करता है कि इदारा शफाफियत की जानिब गामजन है। अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया शर्की में तमाम मामलात कानूनी दायरे कार में रहते हुए सरअंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल्दिया शर्की में अच्छे और काबिल अफसरान की खिदमत हासिल हैं, जिसकी बदौलत हर महकमा अपना किरदार अदा करके जिला शर्की को बेहतरी की जानिब गामजन कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी पीर शौकत अली शाह और म्यूनसिपल कमिश्नर सालिक अहमद भुट्टो ने अफसरान व मुलाजमीन की हिदायत की है कि कवायद व ज़वाबित के साथ साथ अपने अपने डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाएं। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी सालिक अहमद भुट्टो के हमरा अफसरान व मुलाजमीन के इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी पीर शौकत अली शाह ने कहा है कि आप तमाम मेरे बाजू हैं और आप लोग निहायती असलूबी के साथ कवायद व ज़वाबित के साथ साथ अपने अपने डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और मुलाजमीन से उनके अंदर के मौजूद सलाहियतों से भरपूर काम लेते हुए डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी को एक मुनफरिद बल्दियाती इदारा बनाएं। आज के तारुफ इजलास में महकमों के अफसरान ने एडमिनिस्ट्रेटर्स को तलब करके मसाइल के हल के हवाले से गुजारिशात पेश की और अपने ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। खुसूसी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर पीर शौकत अली शाह ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रफीक शेख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R MAD, डायरेक्टर पार्क फहद अली अब्बासी, डायरेक्टर इंक्रोचमेंट काशिफ खालिक, डायरेक्टर लैंड गुलाम मुस्तफ़ा लाखों को हिदायत दी कि इस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप लोगों को अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जरूरत है। बल्दिया किमाड़ी के डिपार्टमेंट के इंचार्जेस और डायरेक्टर HRM जावेद को हिदायत की कि इंक्रोचमेंट के हवाले से अदालती मामलात के लिए अच्छे प्रोसिक्यूटर्स मुकर्रर किए जाएं।
ताकि किसी को भी मुश्किलात का सामना न हो सके। तो दूसरी जानिब जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि नामुमकिन कुछ नहीं, अगर आप हुसूल के लिए अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाएं तो सब मुमकिन है। हमारे इदारे में बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं जिनका हल मुशावरत के जरिए निकाल सकते हैं। मेमन गोट के मुख्तलिफ इलाकों में जिला कौंसिल की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती उमूर का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो ने कहा कि अहले इलाका से हमारा मुसलसल राबता है, क्योंकि मुतालिका इलाके के रिहायशियों को असल इल्म होता है कि अपने मसाइल का, इसलिए रूटीन में इलाकाई दौरे करते हैं ताकि जब वहाँ काम शुरू किए जाएं तो वो मेरिट के मुताबिक सर अंजाम पाएं। मेमन गोट एक तिजारती इलाका है, यहाँ पान की सबसे बड़ी मंडी है। नाम से गोट है मगर नौयत के एतबार से मुकम्मल शहरी शक्ल इख्तियार कर चुका है। उनका मजीद कहना था कि गुंजान आबाद इलाका है, इसके सबब इसकी ज़रूरियात किसी दूसरे इलाके के निस्बत कई ज्यादा है। हमारा अज़्म ही आवाम को बिला तफरीक रंगो नस्ल सहूलियात की फराहमी है, इसलिए शब रोज़ काविश कर रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका जिस मसाइल की निशानदही करते हैं उनको हल करने के लिए फौरी इक़दाम करते हैं, जिसमें मयार के साथ साथ रफ्तार का भी भरपूर ख्याल रखा जाता है। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, एक्सीएन अशफाक अहमद, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक, समाजी रहनुमा हाजी अबू बकर मेमन और दीगर भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताते चलें कि सुस्त रवि के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले तरक्याती काम अवाम के लिए वबाले जान बन गए। गुलशन इकबाल तेरड़ी की मरकजी शाहरा पर भी बरसाती नाले की असर नौ मुरम्मत जारी है, जिसके बायस एक सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद, जबकि दूसरी वन वे होकर शहरियों के लिए खतरे की अलामत बन गई है। सिंध हुकूमत और बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेरे एहतमाम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले तरक्याती काम तमाम ही सुस्त रवी के शिकार। कराची के इलाके गुलशन इकबाल तेराडी की मरकजी सड़क पर भी बरसाती नाले की असरनो मरम्मत जारी है, ताहम काम सुस्त रवी का शिकार होकर मकीनों और राहगीरों के लिए वबाल जान बना हुआ है। शहरी कहते हैं कि मंसूबा तो शुरू कर दिया गया, ताहम उसे तकमील तक नहीं पहुँचाया जा रहा। ज़रूरी ये तो हकीकत में इनको काम तेज़ करना चाहिए, और जबकि बच्चों की स्कूल की वैन भी जाती रहती है और ख़ास तौर पे बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वैनों की हालत इतनी ठीक नहीं है, तो कम से कम रोड पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, स्मूथ फ्लो होना चाहिए ट्रैफिक का, और उसके लिए यह है कि इंतज़ामिया को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हो रहा है ये परी के सुस्त रवि का शिकार है, जल्द से जल्द वो परेशानी बहुत ज़्यादा है। एक सिंगल रोड पे ये ना सारा कुछ ट्रैफिक आ रही है जा रही है सिंगल रोड पे, अब इससे एक्सीडेंट भी होते हैं, परेशानी भी, गाड़ी भी सारी टूटती फूटती हैं। आगे बेहतर तरीके से जल्दी होना चाहिए काम, ये बहुत परेशानी है इलाके वालों को, तो बहुत ज्यादा परेशान। तरक्याती कामों के बायस एक सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद, जबकि दूसरी वन वे होकर खतरे की अलामत बनी हुई है। मकीने ने मुतालबा किया है कि काम में बर्क रफ्तारी लाई जाए और मंसूबे को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मंसूर बनारसी के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची की मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटी रोड पर बनने वाला रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन प्रोजेक्ट मंसूबा सुस्त रवी का शिकार होने से शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है। मरकजी रोड पर रेड लाइन ट्रैक रुकावटें लगाकर बंद तो कर दिया गया, मगर इस पर काम की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। कराची में पब्लिक बस ट्रांजिट मंसूबे पे दर पे तैयारी के मराहिल में हैं। उनमें यूनिवर्सिटी रोड पर कराची में रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन प्रोजेक्ट की तैयारी का आगाज तो कर दिया गया, मगर काम सुस्त रवी का शिकार है। महकमे मौसमियात से नुमाइश तक शहरियों को मयारी सहूलत मयसर आ सकेगी, मगर तैयारी सुस्त रवी का शिकार होने से अवाम सहूलत हासिल करने के बजाय ट्रैफिक जैम की अजियत से दो चार है। सुपरवाइजर रेड लाइन का कहना है कि 2 से 2.5 साल इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में लगेंगे। मौसमियात से लेकर नुमाइश तक इसका रेड लाइन का प्रोजेक्ट है, तो ये लॉट नंबर 2 है, तो इस पे बहुत तेज़ी से वर्क हो रहा है। स्टेशन ये NED पे स्टेशन पे आप खड़े हैं, KU इसकी फंडिशन हो गई है, शेख ज़ायद पे भी जारी है, तो ये 2 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। शहरियों का कहना है कि ग्रीन लाइन से अवाम को सहूलत मैसर आई है, रेड लाइन भी जल्द मुकम्मल किया जाए। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है,
تو مطلب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا تیز کام ہو سکے دن رات، جیسے پہلے کبھی مصطفیٰ کمال نے کیا تھا ڈے نائٹ لگا کر کے سارے انڈر پاسز بنائے تھے، تو اسی طریقے سے یہ بھی کام جلد نپٹانا چاہیے تاکہ مطلب لوگوں کو آسانی ہو، سہولت جلدی میسر ہو. تو زیادہ اچھا ہوگا جلدی کام ہوگا تو ورنہ تو پریشانی تو پہلے چل رہی ہے، کچھ اور چل پڑے گی. پریشانی تو کراچی میں ہر جگہ پہ ہی ہے، ہر جگہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، ہر جگہ نظام ایسے ہی ہے، وہ تو ایسے چلے گا، چلتا رہے گا. بہت زیادہ کنجیشن ہم لوگ کو فیس کرنی پڑتی ہے روزانہ کے اس پہ. صبح میں بھی ٹریفک جام ہوتا ہے یونیورسٹی کے ٹائمنگس پہ پیک آورز میں، اور کیا شام میں بھی پیک آورز بہت زیادہ ٹریفک جام ہوتی ہے. سو آئی وڈ ریکویسٹ آف کورس ٹو دا گورنمنٹ کہ وہ جو ہے نا لازمی جو ہے اس ریڈ لائن کا کنسٹرکشن بہت تیزی سے کرے. جتنا جلد ممکن ہو ان کو بنانا چاہیے، کیونکہ ٹرانسپورٹ کے شہر میں آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہے نا. مطلب جو ہے نا عورتیں، بزرگ، بچے، بیمار لوگ جاتے ہیں، ان کو تو کوئی مطلب سسٹم ہی نہیں ہے. اتنا بڑا شہر، دنیا کے 10 بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، 7 بڑے شہروں میں، لیکن یہاں کی ٹرانسپورٹ سب سے تکی ہوئی ہے. ریڈ لائن محکمہ موسمیات سے نمائش تک مکمل اسٹاپ پر شہریوں کے لیے دستیاب ہوگی، جس کے لیے ابھی حتمی اسٹاپ کا تعین نہیں کیا گیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پروجیکٹ بر وقت مکمل کرنے کے لیے کام کی رفتار تیز اور افرادی قوت مشینری میں اضافہ کیا جائے. کیمرامین منصور بنارسی کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے اب تک کے لیے اتنا ہی.